Okay guys, let's start with the chemical reaction of carboxylic acid. The first reaction of carboxylic acid where there is a breaking of OH bond और H plus release होगा. तो अगर H plus release हो रहा है मतलब यहाँ पर we are going to study about the acidic nature of carboxylic acid by releasing H plus ions. Okay. Now why carboxylic acids are acid? So उसके दो टेस्ट, एक तो लैब टेस्ट. Acid, carboxylic acid can react with active metals, can react with base, can react with basic salt, which can also react with acidic basic salt, जिसमें थोड़ा सा acidic part भी होता है. मतलब उतने least basic से भी वो react कर सकता है और highest basic से भी react कर सकता है because itself its nature is acidic. If it reacts with a sodium metal, it forms a salt RCOO, Na, liberate hydrogen. NaOH से react किया तो RCOO Na plus H2O, that is neutralization. सोडियम सॉल्ट से किया तो अगेन RCOO Na plus it forms H2O plus CO2 gas. If it reacts with NaCO3, same thing, RCO Na plus H2O plus CO2. So it is reacting with active metals, alkali, basic salt, everything because वो एक acid है. ये प्रूफ करता है लैब में. अब क्वेश्चन ये कि theoretically why it is an acid? So when you add carboxylic acid into water, it will dissociate to form H plus ions and carboxylate ion. Now this carboxylate ions, can you see properly? They have a chance of undergoing resonance. See, resonance, because of which it will form a hybrid, a equivalent hybrid structure बनाता है वो. So because of the formation of this equivalent hybrid structure, which is more stable, मतलब this structure is more stable than acid itself. acid से भी ये ज़्यादा stable structure है. तो RCOH को अगर अपने ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है तो उसके अपने आप को क्या निकाल देना पड़ेगा उसमें से H प्लस. इट हैज़ टू एक्सक्लूड H प्लस आयंस टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू मोर स्टेबल फॉर्म बिकॉज दिस फॉर्म इज गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर RCOH से ज़्यादा स्टेबल है. इसके लिए जब तुम एक्वस सोल्यूशन में डालोगे इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस अ मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन. Now, since it is a weak acid, we have a reversible nature for carboxylic acid. All carboxylic acid are weak as compared to mineral acid like HCl, H2SO4. उनके कंपेयर में ये weak होते हैं. So इनका reversible nature ही होगा water में, मतलब they do not dissociate completely. So on this, can we apply law of mass action? Yes. So when you apply law of mass action, you get Ka is equal to molar concentration of carboxylate into H plus, that is product upon reactant. Now this Ka, it's termed as, Ka is called as dissociation or ionization of acid. So if Ka value is more, there will be more H plus and acidic strength will be more. Plus one more thing, this Ka, if you remember, is related to pKa, that is called as potens, the potential of the acid. So pKa is minus log of Ka mathematically. मतलब स्मॉल p ऑफ एनीथिंग इज माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग मैथमेटिकली. तो Pka इज माइनस लॉग ऑफ Ka, मतलब Pka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka. मीन्स इफ Ka वैल्यू इज मोर, Pka वैल्यू विल बी लेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर. मतलब अगर किसी का Pka वैल्यू कम दिया है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी का K वैल्यू ज़्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ओके. प्लस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल इटसेल्फ, क्योंकि अगर तुम बराबर फिनॉल को देखोगे ना तो इन द डिस्कशन ऑफ फिनॉल मैंने ये प्रूफ किया था कि फिनॉल एसिडिक इसके लिए है बिकॉज व्हेन इट डिसोसिएट CCH5OH, व्हेन इट डिसोसिएट फॉर्म्स फिनो ऑक्साइड आयन which gets stabilized to resonance. Okay, but in case of pheno oxide ions, the negative charge are more concentrated on the carbon atom and not on the more electronegative atom. देखो ये तीनों स्ट्रक्चर में आपको बराबर दिखाई देगा. because of resonance of pheno oxide, the negative charge is concentrated on the carbon atom and less on the electronegative oxygen. और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम. इफ इन केस ऑफ carboxylic acid, the negative charge is concentrated on more electronegative atoms. See properly, ये दोनों पे negative charge आ रहा है. They are oxygen. It is not coming on carbon atom. But here the negative charge is more concentrated on the carbon. So can we say that कि this carboxylate ion
स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड। ये याद रखने का मतलब मैं लिख सकता हूँ कार्बोऑक्सलेट इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड। तो अगर ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होगा। देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन फिनॉल, क्योंकि फिनॉल के स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंसी नहीं दिखती है जो कार्बोक्सिलेट में दिखती है। ओके, सो गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टूड के व्हाई carboxylic acid are more acidic than phenol, because having the equivalent structure. Negative charge is more concentrated on the electronegative atoms. Now we know the rule, the golden rule of acidic basic strength, as minus R effect increases or minus I increases, acidic nature increases. For example, if we take trichloroacidic acid, there are 3 chlorine attached to the alpha position of the acidic acid, CH3 COH के ये तीनों हाइड्रोजन पे हम लोगों ने क्लोरीन डाल दिया. So now this chlorine will start pulling the electron towards itself, creating more pulling on this bond between oxygen and hydrogen, due to which H plus released easily. याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग पुलिंग यहाँ से होगा COH पे, COH उतना ही माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और वो H प्लस को ईजिली रिलीज करेगा, बिकॉज H प्लस रिलीज होने के लिए दिस C डबल बॉन्ड O, दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी पुल्ड बाय ऑक्सीजन. तो जितना आप पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे तो ये ऑक्सीजन उतना ही इजीली इस बॉन्ड को पुल करके H प्लस रिलीज कर देगा. रिमेंबर दिस फंडा. सो एज माइनस आर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज. So if you take trichloro, it is more acidic than dichloro, which is more than monochloro, single minus I, which is more than acidic acid, there is no minus I only. बल्कि ये जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक नेचर कम होता है. देखो pK वैल्यू भी है, जितना pK कम रहेगा उतना एसिडिक. Here the pK value is 0.64 and here the pK value is 4.75. Higher the pK, lesser is the acid, weaker is the acid. ना उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल माइनस आई ग्रुप लिया है मैंने, बट दिस इज प्रेजेंट एट 2 पोजिशन, एक अल्फा पे और एक बीटा पे. तो माइनस आई जितना क्लोज रहेगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली द पुलिंग विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस पुलिंग, बिकॉज ये बीटा पे प्रेजेंट है. तो इसके लिए देखो इसका पीके 2.86 है एंड पीके यहाँ पर ज़्यादा है. जितना ज़्यादा पीके उतना कम एसिडिक. ओके, लेट्स सी सम मोर कंपैरिजन. सी दिस एग्जाम्पल about nitrobenzoic acid. This is orthonitro. NO2 is very close to COH, so highest acidic nature. Then you have paranitro, then you have metanitro, because meta के वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता जो ऑर्थो और पैरा क्रिएट कर सकते हैं. और जितना ये अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, जितना पॉजिटिव चार्ज अल्फा कार्बन पे आएगा उतना इजीली H प्लस रिलीज होगा. ओके, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर द एक्सप्लेनेशन. आई यूज दिस स्पेस फॉर द एक्सप्लेनेशन. सी, अगर मैंने एक एसिड लिया है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये ऑर्थो पे सपोज यूज किया NO2 ग्रुप O माइनस प्लस. तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन पुल बाय ऑक्सीजन, ये ऑर्थो का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इधर. सो पुलिंग की वजह से व्हाट विल हैपन, सी यहाँ से जो बॉन्ड शिफ्ट होगा, ड्यू टू विच C डबल बॉन्ड O OH इस कार्बन पे आएगी प्लस चार्ज, एंड हियर इट विल बी डबल बॉन्ड एंड O माइनस प्लस. तो ये जो प्लस चार्ज आ रहा है ना अल्फा पे, दिस विल स्टार्ट पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम, एंड इन शॉर्ट दिस CO विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर, एंड दिस विल ऑक्सीजन विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दिस हाइड्रोजन एंड H विल बी, इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड एंड क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से, H प्लस आयंस विल बी रिलीज. सो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पे क्रिएट कौन कर सकता है, माइनस आर ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन या माइनस आर ग्रुप एट पैरा पोजिशन, बट नॉट एट मेटा पोजिशन. यू रिमेंबर दिस. ज़्यादा क्रिएट नहीं होता. इसके लिए देखो मेटा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा. सो बेंजोइक एसिड उससे कम होगा. वाई, बिकॉज इट डजंट हैव अ माइनस आर ग्रुप एंड OCH3 इज अ प्लस आर ग्रुप. ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना कम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H प्लस बहुत देर से रिलीज होगा. ओके, नाउ ऑक्सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, सॉरी ऑक्सैलिक मैलेनिक सक्सेनिक, CH2 ग्रुप इज अ प्लस आई ग्रुप. जितना प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है उतना एसिडिक नेचर कम हो रहा है. ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, नाइट्रो, फ्लोरो. सी मैंने आपको कुछ कंपेरिजन दिए एसिड के विद रिस्पेक्ट टू pK वैल्यू. ट्राइक्लोरो इज मोर देन डाइक्लोरो, विच इज मोर देन नाइट्रो एसिडिक एसिड, फ्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो का
आई एफ से कम होता है, माइनस आई इफेक्ट. देन यू हैव सैलिसाइलिक एसिड. सो आई हैव गिवन सम कंपैरिजन ऑफ द एसिड. इसमें एक चीज़ नोटिस करो, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक, बिकॉज एसिडिक एसिड में आपको कौन सा इफेक्ट दिखता है, प्लस आई इफेक्ट दिखता है. ज़्यादा एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड इससे, बिकॉज फॉर्मिक में डजन हैव अ प्लस आई इफेक्ट. देखो प्रोपियोनिक एसिड में और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो उतना एसिडिक नेचर कम हो रहा है. ओके, नाउ यू सी दिस कंपेरिजन, रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यूज के. इफ यू सी नाइट्रो तो ऑर्थो पैरा मेटा देन बेंजोइक, जो मैंने सिखाया था यहाँ पर, ऑर्थो पैरा मेटा देन बेंजोइक. ओके, देन इफ यू सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब सैलिसाइलिक एसिड वाला, तो ऑर्थो मेटा बेंजोइक एंड देन पैरा, पैरा विल बी लीस्ट. देन क्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो मेटा पैरा नॉर्मल विद बेंजोइक एसिड. मिथॉक्सी इज अ प्लस आर ग्रुप, ये यूज किया तो ऑर्थो विल बी मोर, देन बेंजोइक एसिड, देन मेटा एंड पैरा. तो रिमेंबर दिस सीक्वेंस. नाउ रिमेंबर सल्फोनिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइनस आ रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 टाइम ऑक्सीजन. It is more than phenol and phenol is more than alcohol. So remember these comparative studies. It will be helpful for solving MCQs. Now next is a reaction involving cleavage of CuOH bond. मतलब ये पूरा बॉन्ड ही ब्रेक कर देना OH. तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2 PCl5 PCl3 क्लोरीनेटिंग एजेंट. ये एजेंट आपने अल्कोहल्स में देखा था. इफ़ यू रिमेंबर, अल्कोहल से हम लोग ने हालाइट बनाया था. अगर अल्कोहल को रिएक्ट कर दो PCl5 से SOCl2 से, तो OH इज रिप्लेस बाय RCl. सो दीज आर यूज फॉर रिप्लेसिंग ऑफ OH. ये बॉन्ड ब्रेक होगा. अभी SOCl2 यूज किया है तो इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl. आपको याद होगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर क्लोरिनेशन, बिकॉज ये दोनों गैस फॉर्म में निकल जाते हैं, ईजी टू सेपरेट. PCl5 वन ऑफ द क्लोरीन, इट फॉर्म्स अगेन एसिड क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3. PCl3 यूज़ किया तो अगेन ये OH रिप्लेस करेगा, तो RC डबल बॉन्ड OCl. तो हम लोग ने एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस POCl. Oh sorry, if you take it 3 moles Cl and plus you get H3PO3 phosphorus acid. ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ. This we have done about this phosphorus acid. Like it one more time. इन कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स टू हैलो अल्केन्स, ये रिएक्शन में किया था हम लोगों ने. तो मतलब एसिड का भी OH ये तीनों रिएजेंट रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक SOCl2 विद दिस बेंजोइक एसिड COH, OH को रिप्लेस कर दो, यू गेट 2NO2 ग्रुप योर प्लस COCl क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड. PCl5 ले लिया है, दैट इज यू गेट CH3COCl, OH रिप्लेस हो गया, प्लस HCl प्लस POCl3. ओके, सो रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाई Cl. एल्कोहल का भी OH कर सकता है, एसिड का भी. एस्टरिफिकेशन यू हैव डन विथ मी. एस्टरिफिकेशन इन केस ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल रिएक्ट विद एस्टर. इसमें यूनिकनेस क्या थी कि एसिड गिव्स OH बिकॉज ऑफ CONH2SO4. का मैकेनिज्म याद होगा. एंड एल्कोहल गिव्स H. आइसोटोपिक ट्रेस मेथड से भी ये प्रूफ किया था कि एसिड गिव्स OH, तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O. उसका रिवर्स हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस यही मिलेगा, प्रिपेरेशन ऑफ एसिड. सिमिलरली एसिड क्लोराइड का आप रिवर्स करोगे हाइड्रोलिसिस तो वापस एसिड मिलेगा, HCl निकल जाएगा यहाँ से. एस्टरिफिकेशन यू हैव टू रिफर एल्कोहल्स फॉर इट. ओके, एल्कोहल फिनॉल्स देख लेना, उसमें पूरा मैकेनिज्म है, पूरा रिएक्शन डिस्कस है. सो वी हैव डन एसिडिक नेचर विद द एंटायर कंपैरिजन, replacement of OH by Cl group and esterification reaction, which I have already done in your alcohols. Let's move on to the next reaction. Now after formation of acid, chloride and ester, let's make anhydride. How to make anhydride? Anhydride का मतलब ये होता है without water. So you take 2 mole of acid, same or different. You react with phosphorus pentaoxide. Phosphorus pentaoxide का एक ही काम है, अगर आपको ये syllabus में दिख रहा है, this is dehydrating agent, removing water. तो देखो ये H2O यहाँ से निकाल देगा, दिस O विल गोज टू C, सो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O. नाउ दिस O इज अटैच टू अगेन C डबल बॉन्ड O, R प्लस यू गेट व्हाट, H2O, एनहाइड्राइड. लाइक एसिडिक एसिड लिया, सो यू गेट CH3, C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O, ये बॉन्ड वाटर निकाल देना यहाँ से। ना एनहाइड्राइड और कैसा बना सकते हो, यू टेक एसिड क्लोराइड, देखो एसिडिक एसिड लो, SOCl अभी किया था क्लोरीनेटिंग एजेंट, सो OH विल बी रिप्लेस बाय Cl, इट फॉर्म RC डबल बॉन्ड OCl। एसिड को NaOH से रिएक्ट करो तो एसिड बेस रिएक्शन, तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड ONA। अब ये दोनों को रिएक्ट कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl हीट करने पे, सो यू गेट RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ऐसा भी बन सकता है, मतलब एसिड क्लोराइड विथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, ये निकाल देना है, उससे भी आप एनहाइड्राइड बना सकते हैं। या तो 2 moles of acid is being heated with phosphorus pentoxide, okay। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देख लिया। नाउ मेक द अनदर डेरिवेटिव ऑफ एसिड दैट इज अमाइड। हाउ टू मेक एन अमाइड, वेरी सिंपल, carboxylic acid is reacted with ammonia. Now carboxylic acid is an acid itself and ammonia is a base. So when it reacts, acid base जब भी रिएक्ट करते एक सॉल्ट बनाते, तो H goes to N, ये लोन पेयर से H मिल जाए, H को इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, NH4 प्लस होगा, ये O माइनस होगा, सो यू गेट RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट, अमोनियम acetate. When you heat this salt, water will be eliminated, H और 2 और O निकल जाएगा, तो you form RC double bond O NH2 plus H2O, so you get an amide here. This is a formation of amide. For example, if you take CH3, अच्छा ये भी चीज़ याद रखना कि सपोज आपने एसिड क्लोराइड लिया और अमोनिया से रिएक्ट किया तो डायरेक्ट HCl निकल जाएगा एंड डायरेक्टली आपको अमाइड मिल सकता है। मतलब अमाइड ऐसा भी मिल सकता है, या तो अमोनिया से एसिड को हीट करने पे भी अमाइड मिल सकता है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, फॉर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एसिडिक एसिड, यू रिएक्ट विद अमोनिया, सो इट विल फॉर्म इनिशियली CH3COO NH4 plus ammonium acetate, you heat it, water is removed, you get CH3C डबल बॉन्ड O NH2, उतना ही कार्बन रहेगा, कार्बन चेंज नहीं होगा, प्लस H2O। ओके, आई हैव टेकन थैलिक एसिड, हीट करो तो इनिशियली यू गेट अमोनियम थैलेट COO माइनस NH4 प्लस COO माइनस NH4 प्लस। अमोनियम थैलेट को हीट किया तो 2 moles ऑफ वाटर निकल जाएगा, H2O, so you get C6H5 C double bond O NH2 C double bond O NH2. This is called as phthalamide, PHTHA amide, थैलामाइड याद रखना, थैलिक एसिड से बना। लेकिन यही थैलामाइड को आप हीट करोगे ना, सी दिस इज थैलामाइड, इसी को आप हीट करोगे तो अमोनिया निकल जाता है, मतलब NH2NH फ्रॉम योर, और ये N ज्वाइन हो जाता है C से, तो यू गेट दिस स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अमाइंस के लिए, C डबल बॉन्ड O NH प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। देखो ये थैलीमाइड है, ये थैलामाइड है, अमाइड आना चाहिए ए। सो थैलामाइड एंड थैलीमाइड में डिफरेंस देख लो, थैलीमाइड इज NH, थैलामाइड को हीट करने के बाद मिलता है, ओके। एंड रिमेंबर दिस P2O5 का फंक्शन क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एसिड से वाटर निकाल के एनहाइड्रेट में, कहीं पर भी P2O5 देखा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वन मोर एग्जांपल, ये भी दिमाग में रखना। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, अगर एरो पे लिख के आया P2O5 हीट, तो यहाँ से H2 और O निकाल दो, तो यू गेट RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2, साइनाइड बन गया। मतलब P2O5 का रोल ही है रिमूविंग वाटर। सो एनहाइड्राइड देख लिया, अमाइड देख लिया, इससे पहले एस्टर देखा, एसिड क्लोराइड देखा। अभी अब रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर मेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एसिड, नाउ वी विल पूरा COH ग्रुप को ही चेंज कर देना है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन से कर सकते हो, ये रिएक्शन हम लोग ने अल्कोहल्स में किया, रिडक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन एसिड इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस एंटायर H पार्ट C, एक H इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H goes to O and 2H goes to the C, so it will form RCH2OH plus H2O। कौन सा अल्कोहल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल, so you get साइक्लोप्रोपेन विथ CH2OH, ठीक है। अच्छा, रेड फॉस्फोरस HI लेते तो पूरा अल्कीन बनता है, याद है रेड फॉस्फोरस की कहानी, इट कन्वर्ट्स एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर, सबको ये किस में कन्वर्ट करता है,
अल्केन्स में, तो ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग ने अल्केन्स में देखा था. Now Kolbe's electrolysis, again alkanes का reaction, if you remember, you take 2 moles of sodium salt of acid, 2Na, this part will be removed, ये दोनों R joined हो जाते हैं higher alkenes के लिए to form RnR plus CO2 plus 2Na. तो ये एनोड और एक कैथोड पे आता है, अल्केन्स में किया था Kolbe's electrolysis. Then formation of amines, when acid is react with N3H. N3H is हाइड्राजोइक एसिड, याद रखने का, हाइड्राजोइक एसिड. उसे जब ये रिएक्ट करेगा, देन दिस एंटायर R goes to N to form RNH2, a primary amine. So you get a primary amine here when hydrazoic acid reacts with RCOOH. So this is formation of amines. So hydrazoic acid से you get a primary amine here plus CO2 plus N2, मतलब 1 कार्बन विल बी लेस, ये CO2 के फॉर्म में लॉस हो जाता है. अमाइंस बनाने के लिए याद रखना है एसिडिक एनी एसिड विद हाइड्राजोइक N3H. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एसिडिक एसिड, सो फिर ये कार्बन यहाँ से मूव हो जाएगा, CO2 इज रिमूव, CH3 गोज टू NH2 टू फॉर्म CH3, we get CH3 attached to NH2, methylamine plus CO2 plus what, H2O. The next is decarboxylation of sodium salt of acid. Again ये alkanes का reaction है. When sodium salt of acid is heated with soda lime, आपको याद होगा NaOH mixture with CO is called as soda lime, मैंने सिखाया था. Where entire Na2CO3 is removed, this H goes to R, alkane का reaction, it forms RH plus Na2CO3. Now decarboxylation of सोडियम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये भी अल्केन में सिखाया था, हंसडिकर रिएक्शन याद होगा. व्हेन यू ऐड ब्रोमीन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सो AgBr निकल जाता है इसके अंदर से. दिस पार्ट विल ब्रेक हियर टू फॉर्म RBr, अल्काइल हैलाइड प्लस AgBr plus CO2. 1 carbon will be less to form alkyl halide. Hunsdiker reaction. You have seen this reaction. Then reaction with डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन से मिथाइल एस्टर बनेगा. ये ईथर में देखा था आपने डाइजोमीथेन. यू हैव सीन दिस रिएक्शन इन ईथर में आपने ये रिएक्शन देखा था कि अल्कोहल रिएक्ट्स विथ CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड. तो H goes to CH2 go back to O to form ROCH3 plus N2. सेम यही करना है, एसिड है ना, तो H goes to CH3 goes to O, so it will form a methyl ester. देखो methyl ester बनाएगा प्लस N2 गैसेस रिलीज. अब मैंने एसिडिक एसिड लिया तो इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 methyl ethanoate plus N2 gases release. Okay, डाइजोमीथेन रिएक्शन. The next reaction is HVZ, Hell-Bollard-Zelinsky reaction. Now this reaction is used to substitute alpha hydrogen of acid with chlorine and bromine. मतलब अल्फा हाइड्रोजन, कोई ऐसा एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर आप उसको रिएक्ट करते हो हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड यू डू हाइड्रोलिसिस, तो दिस H will be removed at alpha position, it forms RCH XCOH, अल्फा हैलो एसिड. देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ब्रोमीन से रिप्लेस करोगे तो C6H5 CH3 BrCOH. सी 1 मोल ऑफ ब्रोमीन लिया है, ये अल्फा है, रिप्लेस करो तो CH2 BrCOH. और एक 1 मोल ऑफ ब्रोमीन आ गया तो फिर अल्फा से रिप्लेस होगा, जितना हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज CH BrCOH. फिर एक ब्रोमीन ऐड करो बिकॉज देर इज 1 मोर अल्फा हाइड्रोजन, so you get Br3COH. Then you add bromine, no reaction because there is no alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा. ये ठीक है ना. अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोजन है, क्लोरीन से रिएक्ट किया, रेड फॉस्फोरस, तो इट फॉर्म CH3 CHCl COH. फिर एक अल्फा हाइड्रोजन है, फिर रिएक्ट करो, सो यू गेट CH3 CL COOH.
सो रिप्लेसमेंट बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की में. ओके, मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड. ओके, बट याद रखना कि इफ़ यू टेक रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन इट विल फर्स्ट फॉर्म PbR3. PbR3 क्या करेगा, एसिड का जो OH है ना उसको ब्रोमीन से रिप्लेस करेगा PCl3 की तरह. Br आ गया, फिर रीअरेंजमेंट होगा. यू कैन सी अ टॉटोमेरिज्म. सी पाई बॉन्ड शिफ्ट हियर, दिस अल्फा हाइड्रोजन का H गोज टू 1 2 3 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, H जाएगा इस O पे, फॉर्म अ इनॉल पार्ट. फिर से ब्रोमीन आएगा. सो व्हेन अ ब्रोमीन इज एडेड, देखो HBr निकल गया. ओके, यहाँ से H और Br निकल जाएगा. ठीक है, एंड वन ऑफ द Br माइनस गोज टू दिस C एंड देर इज अ रीअरेंजमेंट. अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ले लोगे RCOH, तो उसका H आके यहाँ पर अटैक करेगा OH और COBr, ये Br दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा. सो यू गेट अ अल्फा हैलो एसिड, बट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड इन दिस. ओके, so this was the entire HVZ reaction. So this was HVZ along with Hansdika diazomethane decarboxylation जो alkanes में किया है. Let's move on to the last reaction. The last reaction is electrophilic substitution. In electrophilic substitution we know that के carboxylic acid is a minus R group, meta direction. So if you do nitration, सल्फोनेशन या ब्रोमीन हेलोजिनेशन, एवरीथिंग विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट विच पोजीशन, मेटा. सो नाइट्रेशन किया तो COH विद अ रिंग, मेटा का H रिप्लेस हो जाएगा NO2 प्लस से, तो मेटा नाइट्रो. सल्फोनेशन किया तो अगेन मेटा का H रिप्लेस हो जाएगा विद SO3H. ब्रोमिनेशन विद FeBr3, तो अगेन COH, मेटा का H किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से. So this was all about electrophilic substitution and carboxylic acid.